دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بہترین چیز تمہیں پریزنٹ کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا دجل ہے۔ تو اسی لیے تو عورتیں کیوں دجال پہ زیادہ فالو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی۔ کیوں؟ کیا چاہتی ہیں ہوگی مل جائے گی۔ سب سے آخر میں جو نکلیں گی اس کی جانب اور اس کی بیعت کریں گی اور اس کی پیروی کریں گی وہ خواتین ہوں گی، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ دوڑے گا، اپنے گھر جائے گا، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو رسیوں سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں یہ نکل کر گھروں سے اور دجال کی پیروی کر کے اور دجال کے ساتھ شامل نہ ہو۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جسے اگر دجالی دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخری زمانے میں دجال اس دنیا میں انسانی صورت میں ظاہر ہوگا اور اس کے پاس مافوق الفطری قوتیں یعنی سپر نیچرل پاورز ہوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال کے ظہور سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا سب سے خطرناک وار عورتوں پر ہوگا اور وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت کو پھانس لے گا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مرقنہ نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالے گا، اس کے آنے کی خبر سن کر جو سب سے آخر میں اس کی طرف لپکے گی وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک شخص کو اپنے گھر جا کر اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی خالہ کو مضبوطی سے باندھنا پڑے گا کہ کہیں یہ خواتین جا کر دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اس روایت کو مسند احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں پر دجال کا جادو اتنا شدید ہوگا کہ ایک مومن کو اپنی گھر کی عورتوں کو زبردستی روکنا پڑے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ دجال اور اس کے ایجنٹس ان مسلم خواتین کو دلکش نعروں کے ذریعہ بہکا دیں گے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی نام نہاد تحریک، فیمنزم، میڈیا اور فلموں کے ذریعہ عورتوں کو اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ وہ مذہب کی زنجیروں کو توڑ کر شرم و حیا کو چھوڑ دیں اور آزادی حاصل کر کے مرد کے شانہ بشانہ ہو جائیں۔ ان حالات کی پیشگوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ لہذا حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری لڑکیاں گناہ میں مبتلا ہوں گی اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بات بھی ہونے والی ہے؟ فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ دراصل دجال اور اس کے ایجنٹس اور دجالی میڈیا کا پہلا ٹارگٹ عورتیں اور نوجوان ہیں، کیونکہ یہی معاشرے اور فیملی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بیان کیا کہ دجال ایک جوان شخص ہوگا اور اس کے بال گھنگریلے ہوں گے۔ چونکہ دجال جوان ہوگا اس لیے وہ بھی یوتھ کلچر کو پروموٹ کرے گا اور نوجوان نسل دجال کی پیروی کر کے فحاشی کی طرف جائیں گے۔ واشنگٹن ڈی سی میں موجود پیو ریسرچ سینٹر نے پوری دنیا میں مختلف عمر کے مسلمانوں کی آبادیوں پر ایک ریسرچ کی، جس کی رپورٹ سال 2011 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی گلوبل پاپولیشن اگلے آنے والے کئی سالوں تک جوان رہے گی۔ 2030 تک پوری دنیا میں 15 سے 29 سال تک کے عمر والے مسلمان نوجوان کی تعداد 540 ملین ہوگی، جو کہ پوری دنیا کے کل نوجوانوں کی آبادی کا 30% بنتا ہے، اور انہی مسلم نوجوانوں کو دجالی فتنوں کا سامنا کرنا ہے، خاص کر خواتین کو۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنے آپ کو ان دجالی فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا تو امت مسلمہ کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
दज्जाल के फितने में वो औरतें सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी जो मजहब को सिर्फ अपनी सहूलत के हद तक रखना चाहती होंगी। मेरी जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे उन्हीं दज्जाली औरतों का नारा है, और यही वो जहनियत है जिसके बारे में अहादीस में तंबीह की गई है कि दज्जाल का फितना ईमान से ज्यादा सख्त जज्बात, ख्वाहिशात और नफ्स की पैरवी का निशाना बनाएगा। यहाँ तक कि कुछ औरतें दज्जाल के पीछे इस कदर अंधी हो जाएंगी कि उनके घर वाले उन्हें रोकने के लिए बांध कर रखेंगे, मगर वो उन रस्सियों को तोड़कर निकल जाएंगी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जब इंसान में हया बाकी न रहे तो फिर जो चाहे करता रहे। और आज के इस जदीद दौर में यही वो खतरनाक मरहला है जहां औरत के अंदर से हया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। औरत के जिस्म को इज्जत और अमानत के बजाय नुमाइश और इस्तेमाल की चीज़ बना दी जाएगी ताकि वो दज्जाल के फितने को फैलाने में इस्तेमाल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रखने की चीज़ है, और जब वो बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे गौर से देखता है और उसके पीछे लग जाता है। शैतान और दज्जाली ताकतों ने इस राज को बहुत गहराई से समझ लिया, इसलिए उन्होंने औरतों को घर से निकालने के लिए औरत को बाइख्तियार बनाने यानी वुमेन एम्पावरमेंट का नारा बुलंद किया। उन्होंने इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाया कि इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया है और उसे बेकार बना दिया है, इसलिए औरत को जिंदगी के हर शोबे में मर्द के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। और ये तमाम नज़रियात दज्जाली मिशन का एक ख़तरनाक हिस्सा है जिसका मकसद औरतों को उनके असल मकाम से हटाकर ऐसे रास्ते पर डालना है जहां हया, पर्दा और ख़ानदानी निज़ाम कमज़ोर हो जाए, जो दज्जाल के सबसे बड़ी चालों में से एक चाल है और जिसके ज़रिया मुस्तकबिल में औरतों को आज़ादी के नाम पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। औरतों में दज्जाली फितने को आम करने के लिए और उन्हें दज्जाली निज़ाम से मुतासिर करने के लिए शैतान ने मीडिया से लेकर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तक का सहारा लिया है। रंग रोगन और कॉस्मेटिक का एक सैलाब आज औरतों पर डाल दिया गया है ताकि वो फैशन और नुमाइश के नाम पर दज्जाल के मिशन की तकमील करें। टीवी, फिल्म और सीरियल ने इस जादू को और बढ़ा दिया, यहाँ तक कि 21वीं सदी में कोई घर इस फितने से महफूज नहीं है और इन हमलों ने औरतों के दिलों को अंधेरों में डाल रखा है। निगाहें बेहया हो गई, ख्यालात नंगे हो गए हैं और नीम उरिया अधलंगी लिबास औरतों की बर्बादी का सबब बना है। इस्लाम में घर और रियासत दोनों की सरबराही मर्द के हाथों में रखी गई है। चुनांचा जब मुल्क फारिस में किसरा की मौत हुई और उसकी बेटी फारिस की तख्त पर बैठी तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जिसने अपने मामलात एक औरत के सुपुर्द कर दिए। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे उमूर दुनिया औरतों के सुपुर्द हो जाएं तो तुम्हारे लिए ज़मीन के नीचे का हिस्सा ज़मीन के ऊपर के हिस्से से बेहतर है, यानी मौत बेहतर है। हर मैदान में औरतों का सामने आना और मर्दों वाले तमाम काम अंजाम देना न सिर्फ क़यामत की एक अलामत है बल्कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा दज्जाल और उसके शैतानी निज़ाम को पहुँचेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब दज्जाल आएगा तो सबसे पहले औरतें उसकी बात मानेंगी। इससे पता चलता है कि दज्जाल का एक बहुत बड़ा मंसूबा औरतों को शैतानी हुकूक दिलवाना और उन्हें घर के अंदर से बाहर निकालना है। दज्जाली एजेंट्स का मकसद औरतों को उनके असल मकाम से हटाकर दुनियावी फितनों में घुसाना है। दज्जाल के फितने में औरतें सबसे ज्यादा मुब्तला इसलिए भी होंगी क्योंकि दज्जाल के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत होगा। सुनन इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक दज्जाल एक कबीले से गुजरेगा तो लोग उसकी तकजीब करेंगे, लिहाजा उस कबीले का कोई चरने वाला जानवर बाकी न रहेगा, सब मर जाएंगे। फिर दज्जाल एक कबीले पर से गुजरेगा, वो लोग उसकी तस्दीक करेंगे तो वो आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा तो उस पर पानी बरसेगा,
जमीन को गल्ला और घास उगाने का हुक्म देगा तो जमीन गल्ला और घास उगाएगी, यहाँ तक कि उनके जानवर उसी दिन शाम को निहायत ही मोटे और बड़े और कोखें भरी हुई और थन दूध से फूले हुए आएंगे। दज्जाल के पास दुनिया के सबसे कीमती खजाने होंगे और औरतों की फितरत है कि वो माल और दौलत पसंद करती हैं और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, सिवाय उन औरतों के जिनको अल्लाह ने ईमान की हकीकी दौलत से नवाजा और उन्हें ईमान से गनी कर दिया। बहरहाल यही वो औरतें होंगी जिन्हें दज्जाली औरतें कहा जाता है, यानी वो औरतें जो बेहयाई, नुमाइश और दीन से बेजारी के जरिए शैतान के निज़ाम को मजबूत करेगी। कुर्बे क़यामत में औरतों में दो वाज़े ग्रोह होंगे। पहला ग्रोह वो जो दज्जाल की पैरोकार होंगी, यानी वो औरतें जो फैशन से मरऊब आज़ादी के नाम पर बेहया, ज़ाहिरी दौलत और इज़्ज़त की भूखी होंगी, ईमान से खाली होंगी। जैसा कि हम आज के ज़माने में देखें तो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जो इस दज्जाली निज़ाम और इस फितने का हिस्सा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर बेपर्दगी के साथ बैठकर बेहयाई और गंदगी फैला रही हैं। दूसरा ग्रोह उन औरतों का होगा जिनके दिल खौफ खुदा से भरे हुए हैं। वो हर वक्त हिजाब, इबादत और कुरान के कारी बनकर आंसुओं में अल्लाह से दुआ करने वाली हैं। ये वो पाकीज़ा औरतें हैं जिनको अल्लाह ने पाकीज़ा मर्दों के लिए चुना है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा बीवियां हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक बीवियां हैं। यही वो मोमिन औरतें होंगी जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत में छुपा लेगा, जबकि दज्जाल की साथी औरतें दुनिया परस्त, ईमान से गाफिल, फैशन और शोहरत में मुब्तला ज़ाहरी कामयाबियों से मुतासिर होंगी। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मदीना के करीब दलदली मैदानों में उतरेगा और जो लोग सबसे ज़्यादा उसके पास जाएंगे वो औरतें होंगी, यहाँ तक कि एक शख्स अपने घर वापस जाएगा और अपनी माँ, बेटी, बहनें और खाला को बांध देगा ताकि वो दज्जाल के पास न चली जाएं। दरअसल दज्जाल ज़मीन से खजाने निकालेगा, बारिश बरसाएगा, रिस्क बांटेगा। औरतें उसे रहमदिल और मददगार समझेंगी और ये औरतें चाहेंगी कि हमें भी बहुत ज़्यादा माल और दौलत और दुनिया के खजाने मिल जाएं। चुनांचा दुनिया की हिर्स में मुब्तला औरतें और वो ख़वातीन जो दीन से दूर होंगी वो सबसे पहले उसके जाल में फंसेंगी। यहूदियों का अकीदा ये है कि जब यरूशलेम में हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर होगी तो उनका मसीहा ज़ाहिर होगा जो कुद्स की सरजमीन से दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो ये मानते हैं कि जब मसीह दज्जाल निकलेगा तो यहूदियों पर फ़र्ज हो जाएगा कि वो अपने मसीहा यानी मलिक की मदद करें और उसका साथ दें। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा तो उसकी पैरवी इस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे जिनके कंधों और सरों पर सब्ज़ तैलीसियाँ होंगी। ये एक ऐसा कपड़ा होता है जो बिना किसी सिलाई के कंधे के गिर्द लपेट कर पहना जाता है। मुमकिन है कि उन 70,000 यहूदियों में औरतों की भी एक बड़ी तादाद होगी, क्योंकि दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि दज्जाल के पैरोकारों में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। दज्जाल के लश्कर में औरतों को एक नुमाया हैसियत हासिल होगी। दज्जाल के साथ कुछ मखसूस औरतें होंगी जो कदम ब कदम उसके साथ रहेंगी। रिवायतों में उन औरतों को लाइबिया कहा गया है। लिहाजा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि दज्जाल जहां भी जाने का इरादा करेगा तो लाइबिया नामी एक औरत उससे पहले ही वहां पर जाकर लोगों से कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा इससे डरो और उसकी मुखालफत की नताइज से खबरदार रहो। हजरत अबू सईद खुदरी के इस रिवायत को नईम बिन हम्माद ने अपनी किताब किताबुल फितन में नकल किया है। दज्जाल अपने मकसद की तकमील के लिए औरतों का इस्तेमाल करेगा और आज हम साफ देख रहे हैं
کہ किस तरह हुकूक निस्वा, विमेन राइट और फ्रीडम के दिलफरेब नारों का झांसा देकर औरतों को घर की चार दीवारी और अपने महरम की हिफाजत से निकालकर बाजारों और दफ्तरों की जीनत बनाकर इस बेरहम सोसाइटी के हवाले कर दिया गया है। यूरोप की इमदाद से चलने वाली इंस्टीट्यूशंस और टीवी चैनल्स ने दज्जाली एजेंट्स के तौर पर काम किया है और आज के मॉडर्न दुनिया में ऐसा फलसफा पेश किया गोया औरत हमेशा से मजलूम, दबी कुचली और मर्द हमेशा से जालिम रहा है। लिहाजा मर्द के जुल्म से निजात दिलवाने के लिए औरतों को मर्द से आज़ाद करा दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले कर सके और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके। जबकि सितम ज़रीफ़ी ये है कि औरत को मालूम ही नहीं है कि इस दज्जाली तहजीब ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो खुद औरत ही है। आज खुद ये कम अकल औरतें मुहाफिज मर्द और फैमिली से आज़ादी हासिल करके आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने, नौकरियां करने और अपने खर्चे खुद उठाने को आज़ादी और इंसाफ समझती हैं, क्योंकि दज्जाली और शैतानी सहर ने उन सब को अपने जाल में फंसा रखा है। आज हराम रिलेशनशिप्स की वजह से तलाक का रेशियो बढ़ता जा रहा है, औरतें तन्हा होती जा रही हैं और बेरहम सोसाइटी उसको उसके घर से निकालकर बाजार की जीनत बनाना चाहता है। सिंगल पेरेंट का रुझान बढ़ता जा रहा है। अधनंगी औरतें जो आज सोशल मीडिया की खूबसूरती बनी हुई हैं, ये कोई और नहीं दज्जाल की चहेती औरतें हैं जो मुस्तकबिल में दज्जाली माशरे की बुनियाद रखेंगी। दज्जाल का आना यकीनी है और इसका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। वो लोगों को, खासकर औरतों को अपने फंदे में फंसाएगा। बदकार और मुनाफिक औरतें सबसे पहले उसके जाल में फंसेंगी, लेकिन मोमिनीन उसके झांसे में हरगिज नहीं आएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मक्र फरेब और दज्जाल से बचने के कई तरीके बताए हैं, जिनमें कुछ चीज़ें अमली हैं और कुछ चीज़ें रूहानी हैं। दज्जाल से बचने से कबल दिल की गहराइयों से अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करना और उसके फितने से दूर रहने की कोशिश हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उलमाए हक और मशाइख से जुड़े रहना और दीनी उमूर में हिस्सा लेना इस गुमराही से बचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना और उसकी इब्तदाई और आखिरी 10 आयात को हिफ्ज़ कर लेना और सुबह शाम उनको दोहराना, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की ज़मानत दी है कि जिसने भी ये अमल कर लिया वो दज्जाल के शर से महफूज रहेगा। अमली तौर पर हर मुसलमान पर, ख़ासकर औरतों पर लाजिम है कि वो मगरिब की ईजाद करदा तरह तरह की सहूलियात और ऐश व इशरत के असबाब से सख्ती से बचे, सोशल मीडिया पर फैली बेहयाई से बचे और दज्जाली निज़ाम से जुड़ी चीज़ों को जाने जो जाने अनजाने उनके ईमान को खोखला कर सकती हैं। माल की मोहब्बत, दुनिया से लगाव और हिर्स को अपने दिल से निकाल कर दिल को पाक करें। झूठे प्रोपेगेंडा, झूठी अफवाहें, झूठे दावों, झूठी खबरों और रिपोर्ट्स जो सच को झूठ में छुपा देती हैं, उनसे बचें और आगाह रहें। हर रोज़ अल्लाह तबारक व ताला से आजिज़ी के साथ ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें दज्जाल के फितनों से महफूज रख, सीधे रास्ते पर कायम रख, हमें सच्चाई की पहचान अता फरमा, दीन पर साबित कदम रख और अपनी औरतों और औलादों को दज्जाल के फरेब और चालों में फंसकर उसकी तरफ जाने से रुकने की सलाहियत दे।